today here we will discuss about our next tissue, which is called as nervous tissue. Okay, this is the last tissue of structural organization. Hence we have completed epithelial, connective, muscular, and now we are into the nervous tissue, the last tissue. And you can consider this tissue to be the smallest of all. The smallest not in terms of its body percentage. I am saying about the content. It's not it, like in epithelial tissue we had to make 5 or 6 lectures, connective tissue 5 or 6 lectures, muscle 3 lectures, like that. Nervous tissue it will finish in 1 lecture only, so the content is less, okay, but the portion is important. Many questions do come from this region, okay, and you will connect also with this particular portion, because about neuron, about nerve cell you have been studying from your class 8, 9, 10 I suppose, okay, but here you will get little bit more detailing, okay. So nervous tissue, this tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing condition. That means this statement, what does this statement say? The statement says, suppose if you are sitting in one chair, okay, and suppose a guest comes in and you need to offer your chair to your guest. So what you are going to do, you will have to show some responsiveness in that particular condition. You will have to get up from that chair, you will have to move aside, and you need to let your guest to sit into that particular chair. So this responsiveness that you will show at this particular condition, that out of gesture you are getting up and you are going little bit aside and you are allowing your guest to sit. In order to show this responsiveness, which tissue is responsible for bringing these changes in your body? When you are sitting, you have a different body posture. Then when you are getting up, you have a different body posture. When you are moving aside, you have a different body posture. Who is responsible for changing your body posture one after another? Nervous tissue is responsible, okay. The next thing is that nervous tissue, anti-nervous tissue consists of what? What are the constituents of nervous tissue? Suppose in muscular tissue we have studied there are 3 types of muscles: skeletal, smooth, and cardiac. Like in nervous tissue, what are the entities? What are the types of nervous tissue that you need to study? Here you need to study 2 types. The nervous tissue consists of nerve cell, which is also called as neuron. These nerve cells are specialized to transmit messages in our body, okay. With the help of this nerve cells, nerve impulses are sent from one portion to another portion of our body. That is the function of nerve cells. And neuroglial cells. So there are 2 types of nervous tissue that you need to study. One is nerve cell at first, and then the second type is neuroglial cell. What does neuroglial cell do? It protects and supports neuron, okay. So nerve cell transmits messages, transmits nerve impulse in our body from here and there, okay, and these nerve cells will get the necessary protection from the neuroglial cells, okay. Nerve, now we will talk about nerve, okay. A nerve is a tissue is made up of cells. Now we will see how nerve is made up of and what cells constitutes a nerve in our body. A nerve is a collection of nerve fibers, okay. Nerve fibers means nerve cells surrounded with connective tissue membrane. The TS of nerve is exactly like muscle with some very small changes. Whatever TS of muscle we have studied, like endomysium, perimysium, epimysium, same thing you will get here, but just a slight change is there. Hence मसल में जैसे मैंने एक एक करके करवाया था पहले, we talked about a muscle fiber, then we talked muscle bundle, then we came into a muscle. Here I have not done like that. I have made it in a collective way, because as we have done the TS of muscle, you will connect with the TS of nerve. It's not that difficult, okay. So you can see there are some structures present. I have drawn the inside structure of only 2. I have not drawn the other 4, but the other 4 will also look similar to these 2, okay. Now you can see that this structure that you are seeing over here, this structure is a structure which is equivalent to muscle bundle. Muscle bundle is made up of numerous muscle fiber. This is a nerve bundle which is made up of several nerve fibers. Muscle bundle is made up of numerous muscle fiber. Nerve bundle is made up of numerous nerve fibers. Just okay. So inside of this nerve bundle, what are the structure you can see? You can see एक सेंटर में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. ये जो सेंटर का स्ट्रक्चर है वो कौन है? वो है एक न्यूरॉन का एक्सॉन. एक्सॉन तुम लोगों ने पढ़ा है. एक्सॉन इज सराउंडेड बाय व्हाट? Myelin sheath. So this is one axon which is surrounded by myelin sheath.
In such way, there are several neurons present. This is one neuron, one neuron, one neuron, one neuron. These are all neurons. Okay, and these neurons are covered by myelin sheath. All these neurons are present in a cavity. This cavity where all these neurons are present, this cavity is called as what? Endoneurium, equivalent to endomysium. This endoneurium is covered by perineurium, which is a dense irregular connective tissue, whereas this endoneurium is loose connective tissue. Okay, so endoneurium is that cavity where these nerve fibers are present. Okay, nerve fiber is represented by axon and myelin sheath. Axon and myelin sheath is nerve fiber. Several nerve fibers are present in a cavity. Cavity is called as endoneurium. Okay, and this endoneurium is surrounded by perineurium. Okay, here the only change that you will have in between the TS of muscle and TS of nerve is that a group of nerve fiber, that is the nerve bundle, is called as fasciculi. In muscle, we got this cavity where the muscle bundle is present, the cavity which is surrounded by a cavity which is surrounding muscle bundle, or the cavity where the muscle bundle is present. That cavity, this cavity was called as fasciculi, C-U-L-I in muscle. But here in case of nerve, this group of nerve fibers, the nerve bundle, has got a name, and the nerve bundle is called as fasciculi, L-E, not L-I. Okay, so this we will not call it here as nerve bundle. This collection of nerve fibers are called as fasciculi. Okay, so if these are called as fasciculi, what is this cavity called? This cavity is just made up of some loose connective tissue. Okay, and this cavity will have some this kind of structure. What are these structures? These structures are nothing but the blood vessel, which will provide necessary nutrition to the muscle. Okay, so loose connective tissue has a lot of intracellular space, and through this intracellular space, this blood vessel will run. Okay, so this is a cavity which is called which is made up of loose connective tissue with no names. This loose connective tissue, okay, in which this fasciculi, that is the nerve bundle which are present, will be surrounded by another dense irregular connective tissue, and this dense irregular connective tissue is called as epineurium. Collectively, this is the structure of your nerve. So only difference that we get in muscle, TS of muscle and nerve, is the term fasciculi. Okay, there is FASCULI, and that fasciculi is this cavity, this loose connective tissue का cavity जहाँ पे muscle bundles are present. Here in case of nerve, the nerve bundle is called as fasciculi, C-U-L-E. Okay, so I hope this portion is clear. Now we will have to discuss about the nerve cell, the neuron, types of neuron. Okay, and then we will move into the neuroglial cell and types of neuroglial cell. Okay, I hope this portion is clear. Make notes. So now here we will discuss about the types of nerves before going into the neuron and neuroglial cell. Okay, so in the types of nerve, we can see there are three types of nerve on the basis of function. Okay, on the basis of function, what is their respective function? On the basis of that, we get three types of nerve. One is called a sensory nerve or afferent nerve. What does this nerve do? It carries nerve impulse from the receptor to the CNS. CNS means central nervous system. Central nervous system is brain and spinal cord only. Okay, because it lies in the central axis of our body. This is our central axis of the body, and in this central axis of the body we have brain and we have the spinal cord. Okay, so brain and spinal cord is considered as CNS. Okay, so what this nerve do? This nerve brings impulses towards CNS. It brings impulses to spinal cord to brain. Okay, now how do I define you what is sensory nerve? Suppose this piece of board, okay, or this piece of board. If I touch this board, what is the feeling that I am going to get? If I touch this board, I am going to feel this board. My touch receptors are going to feel this board. Then my touch receptor, whatever my touch receptor has felt by touching this board, it will send this signal via a nerve. That nerve will carry this impulse from the touch receptor of this particular region, okay, to my brain, to my spinal cord, to my brain. So this nerve, which is carrying the impulses from my touch receptor to my brain, this nerve is called as sensory nerve. Okay, and this nerve is going to carry that nerve impulse, and it is going to make my brain to know that how this surface felt. This surface felt smooth, or this surface felt rough. This surface felt cold, or this surface felt temperate, hot. Okay, what is the nature of this particular surface of my board? Okay, that will be told
to my brain when the impulses from the touch receptor will travel via the sensory nerve to my brain. That is the work of sensory nerve. It carries impulses from the receptors to the central nervous system. Okay, I have given you some examples. In mammals we have studied that mammals have 12 pairs of cranial nerve. Okay, and I explained you what cranial nerve is. If this is our brain, there are some nerves which goes into the peripheral sides from our brain. So this type of cranial nerves will come up. So there are 12 pairs of cranial nerve. In this way the 12 pairs of cranial nerves goes out from the brain. So here I have given most of the examples with the help of cranial nerve. We have 12 pairs of cranial nerve. So there are some cranial nerve which are sensory, okay, some cranial nerve which will be motor, and some cranial nerve which will be mixed, okay, amongst the 12 pairs of cranial nerve. So who does this function, bringing the impulses from a receptor to the CNS? Who does this function? Cranial nerve number 1, name? Olfactory nerve. Olfactory, smell. So from our nose, whenever we inhale some air, if in that air some odorous chemical is present, odorous chemical माने smell producing chemical अगर present है, वो जाके मेरे नाक के अंदर कुछ रिसेप्टर्स है, olfactory receptor, वहाँ पे बाइंड करेगा, वो रिसेप्टर उस स्मेल को पहचानेगा या एनालाइज करेगा कि कैसा स्मेल है, वो इम्पल्स मेरे नाक से मेरे ब्रेन तक पहुंचाएगा कौन? olfactory nerve पहुंचाएगा. ओके, सिमिलरली cranial nerve नंबर 2, optic nerve. Optic nerve is related with eyes. आज मैं क्या देख रहा हूँ, जो भी मैं देख रहा हूँ, क्या कलर देख रहा हूँ, क्या चीज देख रहा हूँ, वो मेरा आंख डिकोड कर रहा है, और मेरे आंख से उस नर्व इंपल्स को मेरे ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है? क्रेनियल नर्व नंबर 2 का है. तो सेंसोरी ऑर्गन, आंख सेंसोरी ऑर्गन है ना, आंख से ब्रेन तक इंपल्सेस को ले जाना, आंख से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्सेस को ले जाना, ये काम सेंसोरी नर्व का होता है. एंड ऑप्टिक नर्व इज अ सेंसोरी नर्व. ओके, सो आई होप सेंसोरी नर्व समझ में आया है. नेक्स्ट इज मोटर नर्व और इफारेंट नर्व. तुम लोग पूछ सकते हो सर ये एफारेंट इफारेंट ये सब नाम क्यों दिया है? एफारेंट माने कमिंग टुवर्ड्स, इफारेंट का मतलब होता है गोइंग अवे. अभी डेफिनेशन देखो इफारेंट का, इट कैरीज नर्व इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन. ठीक है, सपोज अभी मैंने तुम लोग को समझाया कि मैंने ये सरफेस को छुआ, छूते ही मुझे लगा ये सरफेस स्मूथ है ना, तो वो मुझे कैसे लगा? जब मैं सरफेस को छुआ, मेरा हाथ का जो टच रिसेप्टर है, वो टच रिसेप्टर ने एनालाइज किया कि इसका सरफेस स्मूथ है, वो इंपल्स सेंसोरी नर्व के थ्रू मेरे ब्रेन में गया, मेरे ब्रेन ने समझा कि नहीं ये सरफेस स्मूथ है. अब मेरा ब्रेन रिएक्शन देगा कि मुझे अपने हाथ के साथ क्या करना है, मुझे हाथ से इसको और फील करना है इस सरफेस को, या मुझे हाथ हटा लेना है. अगर ये रफ होता तो मैं फटक से हाथ हटा लेता, नहीं तो मेरा हाथ इंजूर होने का चांस होता. आज अगर सपोज ये सरफेस ठंडा है या नॉर्मल टेम्परेचर का है, तो जैसे ही मैंने छुआ, मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर सेंसिंग रिसेप्टर है उसने सेंस किया कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, सिग्नल गया ब्रेन तक, ब्रेन ने समझा कि नहीं इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, मैं यहाँ पे हाथ रख सकता हूँ. ठीक है, तो मेरा ब्रेन सिग्नल भेजेगा वाया मोटर नर्व, वो मोटर नर्व ऐसे आएगा, आके मेरा हाथ को सिग्नल देगा कि नहीं इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, तुम इसको और छू सकते हो. आज अगर मैं ऐसे छूते ही अगर मुझे पता चलता है इसका टेम्परेचर गर्म है, ज्यादा टाइम छू के रखने से मेरा हाथ जल जाएगा, तो मैं जैसे यहाँ पे छूंगा, टेम्परेचर सेंसिंग रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, वो समझ जाएगा कि इसका टेम्परेचर गर्म है, सिग्नल भेजेगा इसका टेम्परेचर गर्म है. सेंसोरी नर्व के थ्रू सिग्नल गया, ब्रेन ने समझा टेम्परेचर गर्म है, ब्रेन ने रिवर्स सिग्नल भेजा वाया मोटर नर्व, मोटर नर्व ने आके हाथ को सिग्नल दिया भाई ये गर्म है, ज्यादा छू के रखोगे हाथ जल जाएगा, हाथ हटा लो, मैं तुरंत हाथ हटा लूंगा. समझ में आया ना? तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मोटर नर्व एंड व्हाट इज सेंसोरी नर्व. और व्हाई एफरेंट? बिकॉज कमिंग टुवर्ड्स ब्रेन, इफरेंट गोइंग अवे फ्रॉम द ब्रेन. ओके, सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक ही दिया है. क्रेनियल नर्व नंबर 4, ट्रोक्लियर नर्व, ये हमारा आई का जो मूवमेंट है, हमारा आंख का जो मूवमेंट है, उसको ये वाला नर्व ऑपरेट करता है. ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन से एक नर्व आता है आंख तक, और ये हमारा आंख का मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स नर्व. मिक्स नर्व इज अ नर्व व्हिच हैज बोथ सेंसोरी एज वेल एज मोटर नर्व फाइबर्स. ठीक है, तो ये मिक्स इसलिए नाम मिक्स्ड क्योंकि ये एक ऐसा नर्व फाइबर है जो दोनों काम कर सकता है, डुअल काम, सिंगल नर्व डूइंग डुअल पर्पस, डुअल काम. ठीक है, इस नर्व के थ्रू इंपल्सेस आ भी सकता है, इस नर्व के थ्रू इंपल्सेस जा भी सकता है. ठीक है, एग्जांपल स्पाइनल नर्व. ठीक है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये ब्रेन है, ऐसे करके स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ रन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड से भी तो ऐसे ऐसे पेरिफेरल में नर्व निकलेगा, उसको क्या बुलाएंगे? स्पाइनल नर्व. तो स्पाइनल नर्व जो है उसके थ्रू भी क्या होगा? इंपल्सेस आ भी सकता है, जा भी सकता है. फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 7, ये भी एक मिक्स नर्व है, इसके थ्रू इंपल्सेस आ भी सकता है, जा भी सकता है. Cranial nerve number 10, vagus nerve, largest cranial nerve. Out of 12, vagus nerve is considered to be the longest
क्रेनियल नर्व, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट कोई और है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज आवर वेगस नर्व। तो हमारा जो वेगस नर्व है, ये वेगस नर्व हमारा एक मिक्स नर्व है, ये इम्पल्सेस लेके आता भी है और इसके थ्रू इम्पल्सेस जाता भी है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नर्व दैट यू नीड टू नो, बिकॉज नर्व का टीएस पढ़ाया है, इसलिए साथ में टाइप्स ऑफ नर्व खत्म कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ओके, इसको लिख लो। So here I have made a diagram of your neuron or nerve cell. Okay, so you can see the diagram of neuron or nerve cell. Neuron and nerve cell is called a structural and functional unit of nervous tissue. Okay, and most of the portion I hope you know. Okay, like these are dendrites, cyton, axon. Okay, the main neuron, the main cell is this cyton only. Okay, this cyton is called as cell body. This cyton is called as soma. SOMA, soma, pericardion, PERIKARYON. These are alternate name of cyton. Cyton is also called as cell body, soma, 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 or pericardion, PERIKARYON. These are alternate name of this cyton. And this dendrite, this axon, these are cell processes of cyton. Okay, cyton will send out some processes from it, and some processes which are short are called as dendrite, and one process which is long is called as axon. Okay, so dendrite, cyton. Okay, cyton is surrounded by neurolemma. Okay, this cell membrane is called as neurolemma. Inside neuroplasm is present. अंदर का cytoplasm is neuroplasm. उस neuroplasm में suspended है एक न्यूक्लियस सेंटर में, and various cell organelles. उन cell organelles को हम लोग क्या बुलाते हैं? Nissls granules और Tigroids body. ठीक है, बुला सकते हैं. What are these Nissls granules and Tigroids body? These are some rough endoplasmic reticulum. Okay, then mitochondria, ribosome, ठीक है, these are the Nissl granules और Tigroids body. Okay, mitochondria, ribosome, rough endoplasmic reticulum, ये सब है इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सन शुरू होगा। एक इंफॉर्मेशनल पॉइंट दे दिया है, सेंट्रोमियर इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज एब्सेंट इनसाइड अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोमियर इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल जो नहीं पाया जाता है, ठीक है। एक्सॉन शुरू हुआ, एक्सॉन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग न्यूरॉन्स ट्रिगरिंग जोन और एक्सॉन हिलॉक करके हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। फिर एक्सॉन शुरू होगा, उस एक्सॉन में ये सपोज एक्सॉन है, उस एक्सॉन को ऐसे देखो, ध्यान से देखो, ऐसे कंप्लीटली चारों तरफ से कंप्लीट सराउंड करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है रेड कलर में, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? माइलिन शीथ। तुम लोग पहले ऐसे ऐसे डायग्राम बनाते थे, ये एक्सॉन अगर है, एक्सॉन के साइड में तुम लोग ऐसे ऐसे करके बनाते थे, ये रॉन्ग है। ये होने से क्या होता है, एक्सॉन का ये वाला जगह एक्सपोज्ड है ऐसा फील आता है, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है। तुम लोग को ऐसा दिखाना है कि ये जो एक्सॉन है उस एक्सॉन को माइलिन शीथ ने ऐसे सराउंड किया चारों तरफ से, ठीक है ना, हर तरफ से माइलिन शीथ ने एक्सॉन को सराउंड कर लिया है। दैट विल बी द करेक्ट डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने माइलिन शीथ इसलिए ऐसे बनाया है सो दैट ऐसा लगे कि माइलिन शीथ ने एक्सॉन को चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है, कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय द माइलिन शीथ। अभी माइलिन शीथ के अंदर एक सेल है जो माइलिन शीथ को फॉर्म करता है, श्वान सेल, नेम्ड आफ्टर थियोडोर श्वान, इसका फाउंडर, ठीक है, उसके ऊपर ये नाम दिया गया है। ओके, माइलिन शीथ के बीच बीच में कुछ एक्सपोज रीजन है एक्सॉन का, उस एक्सपोज रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। एक्सॉन, ठीक है, ये एक्सॉन है, ठीक है, लिख दिया एक्सॉन। एक्सॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम होगा एक्सोलेमा। एक्सॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा उसका नाम होगा एक्सोप्लाज्म, ठीक है, याद रखना। एक्सॉन आके सेवरल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इन ब्रांचेस का ये जो टर्मिनल रीजन है, इस टर्मिनल रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सॉन टर्मिनल, क्योंकि एक्सॉन यहाँ पे खत्म हो रहा है। और टेलोडेंड्रिया, एक और नाम टेलोडेंड्रिया। एक्सॉन टर्मिनल एंड्स इन अ इस तरीके का लोब्यूलर स्ट्रक्चर। ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? साइनेप्टिक नोड, और वी ऑल्सो कॉल इट एज बोटॉन टर्मिनॉक्स, ठीक है, BUTONTERMINAX टर्मिनॉक्स, ठीक है। सो ये है तुम्हारा न्यूरॉन का डायग्राम, न्यूरॉन का कंप्लीट पोर्शंस विद ऑल्टरनेट नेम, ये सब याद रखने का कोशिश करना, ठीक है। नाउ आई विल राइट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस न्यूरॉन, उसके बाद वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स क्या क्या है? बोला जा रहा है कि साइनेप्टिक नोड हैज सम साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक नोड के अंदर इस तरीके का कुछ छोटा छोटा राउंड चेंबर्स होगा जिनको हम लोग साइनेप्टिक वेसिकल्स बुलाएंगे। इनसाइड ऑफ विच हैज सम साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनसाइड ऑफ विच
न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है, कुछ केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन हम लोग बुलाते हैं, कुछ केमिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट है, इस तरीके का कुछ केमिकल्स इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसको न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर बुलाते हैं। ये केमिकल हेल्प्स इन दी पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स। साइनेप्स तुम लोगों ने क्लास 9-10 में तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये जो साइनेप्टिक नोब है, ये साइनेप्टिक नोब एक चैम्बर के थ्रू, सपोज ये किसी न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब है, ये इस तरीके का एक चैम्बर के थ्रू एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये है डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन 2 एंड दिस इज एसके साइनेप्टिक नोब ऑफ न्यूरॉन 1, और इन दोनों के बीच का जो ये एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड ए साइनेप्स और साइनेप्टिक चैम्बर। तो इससे जब इम्पल्स, ये जो न्यूरॉन 1 है, इससे जब इम्पल्स इसमें जाएगा, 1 से 2 में जब जाएगा तो इस साइनेप्स के थ्रू जाएगा। तो इस साइनेप्स में ये केमिकल्स जो है, ये केमिकल्स मदद करेगा इस नर्व इम्पल्स को यहाँ से यहाँ जाने में। क्या मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, ये सब हम लोग बाद में जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे वी विल रिलेट, ठीक है, कि कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर एक साइनेप्टिक नोब ऑफ न्यूरॉन 1 से डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन 2 में उस इंपल्स को पास करने में ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे मदद करता है, ठीक है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वही यहाँ पे मैंने तुम लोग को एक्सॉन टर्मिनल ये है, ठीक है, ये है साइनेप्टिक नोब। तो साइनेप्टिक नोब के अंदर ये सब साइनेप्टिक वेसिकल, एक साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर 1 साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन्स अराउंड 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर। एक साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर 10,000 न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्स के थ्रू इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में पास होने में मदद करेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूमेरस ऑफ एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल में ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटन, दैट मींस यहाँ पे निसल ग्रेन्यूल के बारे में बात हो रहा है, राइबोसोम, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, जो निसल ग्रेन्यूल्स है उनके बारे में यहाँ पे बात चल रहा है, फॉर्म्स दी न्यूरोट्रांसमीटर। ये सब मिलके न्यूरोट्रांसमीटर को फॉर्म करता है और करके इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर में भर भर के रखता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इम्पल्सेस ऑलवेज पासेस फ्रॉम डेंड्राइट टू साइटन, हमेशा इम्पल्स डेंड्राइट लेगा और साइटन के तरफ भेजेगा। इसको, इस कंडीशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेंट्रीपेटल कंडक्शन। एंड देन जब साइटन में इम्पल्स आएगा, फिर साइटन से वो इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू होते हुए साइनेप्टिक नोब में आएगा, फिर एक और न्यूरॉन के डेंड्राइट में चला जाएगा। ये डेंड्राइट जो लेगा ये फिर से साइटन में देगा, सेंट्रीपेटल कंडक्शन, साइटन फिर से एक्सॉन के थ्रू भेजेगा। तो इम्पल्सेस देन पासेस फ्रॉम साइटन टू एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, ठीक है। सो ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लो डायग्राम के नीचे, ठीक है। नाउ वी विल मूव इनटू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिस्कस कर रहे हैं। 5 टाइप्स हम लोग को मिलेगा ऑन दी बेसिस ऑफ सेल प्रोसेसेस। यहाँ पे जो बेसिस है इस टाइपिफिकेशन का वो है सेल प्रोसेसेस, कि साइटन से कितना सेल प्रोसेसेस निकलता है, वो है यहाँ का बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज एपोलर और नॉन पोलर न्यूरॉन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे, सिलेंटेरेटा में। जो पहला न्यूरॉन इस वर्ल्ड में आया था एनिमल के बॉडी में, वो क्या था, एपोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन। सो नो सेल प्रोसेसेस अराइजेस फ्रॉम दी साइटन, हमको पता है इस तरीके का था ये न्यूरॉन देखने में। ठीक है, सो नो सेल प्रोसेसेस अराइजेस फ्रॉम द साइटन, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव न्यूरॉन, क्योंकि एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो न्यूरॉन आया था वो ये था। ऑब्वियसली इट हैज टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव न्यूरॉन। एग्जांपल मैंने एक सिलेंटेरेटा का नाम दे दिया है, हाइड्रा, ठीक है। तो ऐसा है न्यूरॉन, ठीक है, जिसका सिर्फ साइटन है, ना एक्सॉन है, ना डेंड्राइट है। दिस न्यूरॉन कैन टेक नर्व इंपल्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन, कैन ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टू एनी डायरेक्शन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनी, सिंगल न्यूरॉन, सेल बॉडी है एंड सेल बॉडी से निकला है एक सिंगल सेल प्रोसेस जिसका नाम है एक्सन। देखो ये है साइटन, सेल बॉडी। साइटन को जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बोला है, हम लोग सेल बॉडी बुलाते हैं, सोमा बुलाते हैं, पेरिकार्यन, ये सब नाम से हम लोग बुलाते हैं साइटन को। और साइटन से एक ही एक्सॉन निकला है, कोई डेंड्राइट नहीं है। फाउंड इन अर्ली एम्ब्रायोस, हम लोग जब छोटे रहेंगे, मदर के पेट में रहेंगे, तो हमारे बॉडी में जब पहले न्यूरॉन बनेगा वो क्या बनेगा, वो यूनिपोलर बनेगा। बाद में ये यूनिपोलर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बाइपोलर
स्यूडो यूनिपोलर या मल्टीपोलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 टाइप लिखा है। जो 5th टाइप है वो है, इसके पहले जो डायग्राम बना के तुम लोग को जो समझाया, ठीक है, वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब है कि साइटन से जब सेवरल सेल प्रोसेसेस निकलता है, सेवरल सेल प्रोसेसेस कमिंग आउट ऑफ द साइटन, दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो जो डायग्राम बना के तुम लोगों को सब क्या बोलते हैं इसको, आउटलाइन कर करके जो सबका नाम बोला था, दैट न्यूरॉन वाज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, उसके बारे में मैं भी कुछ लिख दूंगा। तो हमारे बॉडी में, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, इन द बॉडी ऑफ एडल्ट ह्यूमन, वी हैव बाइपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन एंड दैट वन मल्टीपोलर न्यूरॉन। वी डू नॉट हैव यूनिपोलर। लेकिन जब हम लोग बच्चे रहेंगे, मदर के पेट के अंदर रहेंगे, तब हमारे बॉडी में जब पहले न्यूरॉन को बनाएगा, ठीक है, कौन बनाएगा न्यूरॉन को? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जब हमारे बॉडी में पहली बार न्यूरॉन को बनाएगा, तो वो एक्टोडर्म पहले बनाएगा किसको? यूनिपोलर को। और फिर ये यूनिपोलर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बाइपोलर, या फिर इनटू स्यूडो यूनिपोलर, या फिर इनटू मल्टीपोलर। ठीक है, इसलिए फाउंड इन अर्ली एम्ब्रायोस लिखा है। ठीक है, बाद में ये इनमें चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी है एंड बाइपोलर, बाई 2, एक एक्सॉन निकलेगा, एक डेंड्राइट निकलेगा। देखो, देखने में ऐसा होगा बाइपोलर न्यूरॉन, एक डेंड्राइट, साइटन, एक्सॉन। तो साइटन से 2 सेल प्रोसेसेस निकला है, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। ठीक है, एग्जांपल फाउंड इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, नाक का जो हमारे अंदर का एपिथेलियम है वहां पे पाया जाएगा। एंड रेटिना ऑफ आई, आंख के अंदर ये वाला न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, अब सिर्फ लोकेशन याद रखो। ठीक है, इस जगह पे रह के ये क्या फंक्शन करता है, ये सब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल के चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी जब आएगा तब क्लियर हो जाएगा। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो फॉल्स, यूनिपोलर माने फॉल्स यूनिपोलर, मतलब ये अपने आप को एक यूनिपोलर के जैसा दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन है ये बाइपोलर। देखो, दे आर एक्चुअली बाइपोलर बट अपीयर्स लाइक यूनिपोलर न्यूरॉन। देखो, ये क्या है? साइटन, सेल बॉडी। साइटन से देखो 2 सेल प्रोसेसेस निकला है, लेकिन ये देखने में कैसा है? इसके जैसा है कि नहीं? यूनिपोलर के जैसा है कि नहीं देखने में? तो ये अपने आप को दिखा रहा है यूनिपोलर के जैसा, लेकिन है बाइपोलर, क्योंकि 2 सेल प्रोसेसेस निकला है, एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा? डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का मतलब है जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे पेरिफेरी में कुछ स्ट्रक्चर निकलता है, उन स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर है डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये स्ट्रक्चर फिर से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही क्लियर होगा। अभी के लिए याद रखो कि जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, उस स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरी माने साइड के तरफ, लेटरल साइड के तरफ कुछ प्रोजेक्शन निकलता है, और उन प्रोजेक्शन में से एक प्रोजेक्शन है ये डोर्सल रूट गैंग्लियन, उसमें ये वाला न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ देखो, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग मल्टीपोलर न्यूरॉन। डायग्राम और मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि न्यूरॉन बोल के जो हम लोगों ने डायग्राम पहले किया है वही है मल्टीपोलर न्यूरॉन। डेफिनेशन देख लो, व्हिच हैव मेनी सेल प्रोसेसेस, उसमें था अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, आउट ऑफ देम वन इज लॉन्गर, एक्ट्स एज एक्सॉन, मैंने बोला था, एंड द रिमेनिंग एज डेंड्रॉन। जो छोटा छोटा है वो सारा डेंड्रॉन है, एक है जो लंबा है, लॉन्गर है, वो है एक्सॉन। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन आर द मोस्ट कॉमन एंड आर फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे तुम लोग को एग्जांपल भी मिल गया है, एग्जांपल है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है उनका जो न्यूरॉन्स है दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डज द मोस्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेस्पॉन्सिवनेस जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ही डायरेक्ट करता है। तो जो ऑर्गेन डायरेक्ट करेगा उसमें ऑब्वियसली सबसे एडवांस वाला न्यूरॉन का होना बहुत जरूरी है, हेंस मल्टीपोलर न्यूरॉन इन स्ट्रक्चर्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, एक्सॉन जो है वो एक्सॉन चाहे वो ब्रेन में हो, एक्सॉन माने यहाँ पे न्यूरॉन का ही बात चल रहा है, न्यूरॉन का ही। अभी एक्सॉन तो अलग नहीं होगा ना, वो तो एक न्यूरॉन का ही हिस्सा होगा। तो चाहे एक ब्रेन बहुत सारा न्यूरॉन से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है ब्रेन, उन न्यूरॉन्स में से कुछ न्यूरॉन होगा जिनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होगा, जिनका एक्सॉन नंगा होगा, नंगा, कोई माइलिन शीथ नहीं होगा जो उसको सराउंड कर रहा है, द एक्सॉन इज नेकेड। ठीक है, उस तरीके का एक्सॉन का जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा ग्रेइश। ठीक है, सो एक्सॉन अपीयर्स ग्रेइश व्हेन माइलिन शीथ इज एब्सेंट। अगर किसी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं है तो उस एक्सॉन का कलर ग्रे आएगा। एक्सॉन अपीयर्स व्हाइटिश, व्हाइट कलर का आएगा व्हेन इट इज माइलिनेटेड। क्यों? बिकॉज माइलिन शीथ इज अ लिपिड रिच शीथ। माइलिन शीथ जो है वो एक लिपिड का शीथ है। लिपिड माने फैट, फैट का कलर हमेशा क्या होता है? व्हाइट होता है। ठीक है ना,
तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। चाहे वो ब्रेन हो, ब्रेन विल ऑल्सो हैव अ व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, ठीक है। ब्रेन का जो बाहर का हिस्सा होता है वो ग्रे मैटर होता है, ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा होता है वो व्हाइट मैटर होता है। तो जो ग्रे मैटर होगा, जो बाहर का हिस्सा होगा, ग्रे मैटर होगा, दैट ग्रे मैटर विल बी मेड अप ऑफ व्हाट, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अपीयर ग्रेइश कलर, एंड जो अंदर का व्हाइट मैटर होगा ब्रेन का, दैट विल बी मेड अप ऑफ व्हाट, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स व्हिच विल अपीयर व्हाइटिश इन कलर। अच्छा, इसके बाद वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एंटाइटी ऑफ नर्वस टिश्यू, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल जो है, दीज आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सपोर्टिंग द न्यूरॉन्स। पहले ही मैंने बोला इसका काम है सिर्फ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना, ये कोई नर्व इंपल्स कंडक्शन वगैरह नहीं करता है, बस न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, ये है इस सेल का प्राइमरी काम। मोर देन 50% ऑफ ऑल ब्रेन सेल्स आर ग्लियल सेल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, ये सब का क्वेश्चन में ये लाइन डाल देता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन में समझ में आया ना, टोटल जितना भी सेल है उससे 50% से ज्यादा सेल ये न्यूरोग्लियल सेल ही है, इवन मोर देन न्यूरॉन्स। ब्रेन में न्यूरॉन जितना है उससे भी ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल है। दिस सेल्स सेपरेट द एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंश्योरिंग द पासेज ऑफ इंपल्सेस ओवर द साइनेप्सेस ओनली, ठीक है। इसको समझो, इसको इस लाइन को समझाने के लिए लेट अस कंसीडर अ बाइपोलर न्यूरॉन। पकड़ लो, ये एक बाइपोलर न्यूरॉन है, अभी हम लोगों ने बाइपोलर न्यूरॉन ड्रॉ किया था। इस बाइपोलर न्यूरॉन में ये डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है, ये साइटन है, ठीक है। अच्छा, अब बोला जा रहा है बिकॉज ब्रेन जो है, ब्रेन बनता है एक्युमुलेशन ऑफ न्यूरॉन से, बहुत सारा न्यूरॉन एक साथ एक्युमुलेट होता है, उससे ब्रेन बनता है। आज बोले इसके एकदम पैरेलली एक और न्यूरॉन ऐसे करके प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का जो ये वाला गैप है, इस गैप में किसी को होना पड़ेगा। अगर इस गैप में कोई नहीं हुआ और बाई चांस ये एक्सॉन इसके साथ या ये वाला जो न्यूरॉन इसका कोई पार्ट बोले उसके साथ बोले टच हो गया, तो नर्व इंपल्स का जो ट्रैवलिंग का प्रोसेस है उसमें डिस्टरबेंस होने का बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए ये बीच में पाया जाएगा न्यूरोग्लियल सेल। ये जो बीच का रीजन है इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स पाया जाएगा, जो इन दोनों पैरेलल न्यूरॉन्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में गलती से भी आने को नहीं देगा, जिसके वजह से यहां पे साइनेप्स फॉर्म होगा एंड इस न्यूरॉन का नर्व इंपल्स इस साइनेप्स के थ्रू ही दूसरे न्यूरॉन में जा पाएगा, ठीक है। नहीं तो बोले इसका एक्सॉन बोले यहां से टेढ़ा होके आके बोले इसका साइटोन में लग गया, तो ये नर्व इंपल्स बोले इसके साइटोन में पास कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, जो नर्व इंपल्स का ट्रैवलिंग है उसमें गंडगोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इस न्यूरॉन का नर्व इंपल्स इस साइनेप्स के थ्रू इसमें जाए, ठीक है ना, बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट है, जो इन दोनों पैरेलल न्यूरॉन्स को सेपरेट वे में रखता है, सो दैट इन दोनों के बीच में कोई गलत जगह पे कनेक्शन ना बन जाए और जो पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स है उसमें कोई मतलब उल्टा पुल्टा ना हो, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो ऐसा ना हो कि इससे इसमें आ गया, इससे कहीं और चला गया, उससे कहीं और चला गया, ठीक है ना। तो वही लिखा है, दिस सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स सेपरेट द एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंश्योरिंग द पैसेज ऑफ इंपल्सेस थ्रू द साइनेप्सेस, ठीक है। सो ये है, अभी इसका नोट बनाओ। नेक्स्ट अभी हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द लास्ट। We have come into the last part of the, or you can say the last discussion of nervous tissue, last discussion of structural organization part 1. Okay, part 2 में कॉकरोच मिलेगा, आर्थोम कॉकरोच फ्रॉग, वो तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है, फिर से टाइपिफिकेशन हो रहा है, कितना टाइप्स है, 3 टाइप्स है। क्या बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हर न्यूरोग्लियल सेल का सेम है, प्राइमरी फंक्शन इज टू सपोर्ट द न्यूरॉन, सेकेंडरी फंक्शन सबका अलग अलग हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी फंक्शन एंड साइज, कौन सा न्यूरोग्लियल साइज बड़ा है छोटा है, उस बेसिस पे हम लोग को 3 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल मिलेगा, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल का न्यूरॉन से, ठीक है, और क्या डिफरेंस है, एक तो न्यूरोग्लियल सेल विल नॉट कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस, न्यूरोग्लियल सेल के थ्रू नर्व इंपल्सेस पास नहीं होगा। उसके अलावा अगर तुम लोग को ये कभी कभी पूछा जाता है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल ना, तब यू कैन एक तो ये लिख सकते हो कि नर्व इंपल्स न्यूरॉन के थ्रू पास होता है, न्यूरोग्लियल थ्रू नहीं होगा। न्यूरॉन का फंक्शन है ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स, न्यूरोग्लियल का है सपोर्टिंग द न्यूरॉन। थर्ड, निसेल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स, निसेल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। तो एक पॉइंट छूट गया था, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट का इस टाइपिफिकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने एज एन इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया है। दीज आर योर 3 टाइप्स ऑफ
न्यूरोग्लियल सेल। पहला को क्या बुला रहे हैं, एस्ट्रोसाइट और मैक्रोसाइट। मैक्रो बड़ा, ठीक है, क्यों, लार्जेस्ट इन साइज। ये वाला न्यूरोग्लियल सेल सबसे बड़ा सेल है, इसको मैक्रोसाइट, मैक्रोग्लियल सेल सेम है। एस्ट्रोसाइट क्योंकि स्टार के जैसा दिखने में होता है, ठीक है, ये इसको एस्ट्रोसाइट इसलिए बोला गया है बिकॉज ये देखने में स्टार के जैसा है। मैक्रोसाइट माने लार्जेस्ट इन साइज या मैक्रोग्लियल सेल, बात सेम है। दे फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लियल सेल, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स जो है वो इसमें ही मतलब हमारे बॉडी में जितना भी ग्लियल सेल है उसमें से सबसे ज्यादा यही ग्लियल सेल पाया जाता है, सबसे लार्जेस्ट साइज इसका है। प्राइमरी फंक्शन सपोर्टिंग द न्यूरॉन। सेकेंडरी फंक्शन इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ नर्वस टिश्यू एंड फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। माने जो हमारा न्यूरॉन है उस न्यूरॉन का कभी पकड़ लो साइटोन का सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, एक्सोन का सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, ठीक है ना, ये मान लेते हैं एक्सोन है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन है, ऐसे जाके एक्सोन नैरो हो जाएगा, नैरो होकर एक्सोन से सेवरल इस तरीके का सेल प्रोसेसेस निकलेगा, मान लेते हैं एक्सोन। एक्सोन का ये वाला जगह डैमेज हो गया, ये क्या करेगा, ये तुरंत आएगा, आके ये वाला जगह को ऐसे करके सील कर देगा, एम सील के जैसे, एम सील जो हम लोग ट्यूब पाइप में लगाते हैं कभी उसमें लीक हो जाने के जैसे, ठीक है, रिपेयर ऑफ नर्वस टिश्यू, ऐसे करके सील कर देगा सो दैट एक्सोन के अंदर का जो एक्सोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, वो लीक ना हो, ठीक है। प्लस इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। क्यों, ब्रेन जो हमारा है, ये ब्रेन एक बहुत ही कम्पैक्ट ऑर्गन है, बहुत ही कम्पैक्ट ऑर्गन है, इसमें मतलब एकदम ठूस ठूस के न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल घुसा हुआ है। ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स ट्रैवल करता है, उन ब्लड वेसल को बहुत मुश्किल होता है ब्रेन के अंदर से ट्रैवल करने में, बिकॉज ब्रेन एक बहुत ही कम्पैक्ट ऑर्गन है, ब्रेन के अंदर जगह ही नहीं है इन ऑर्डर टू अलाउ द ब्लड वेसल्स टू मूव। फिर भी ब्लड वेसल जैसे तैसे जहां तहां से जगह निकाल के वो ब्रेन के थ्रू मूव कर रहा है, बिकॉज ब्रेन सबसे हाईली फंक्शनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, है ना, ब्रेन सब कुछ डायरेक्ट कर रहा है। अब ब्रेन को तो एनी टाइम न्यूट्रिशन का डिलीवरी करना, ऑक्सीजन का डिलीवरी करना इज मस्ट, हेंस ब्लड वेसल विल हैव टू पेनिट्रेट, चाहे मुश्किल हो लेकिन फिर भी ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जब ब्रेन के थ्रू पेनिट्रेट करता है, ठीक है, द ब्लड वेसल्स कैन नॉट बी वेरी बिगर ब्लड वेसल, मोस्टली इट इज कैपिलरीज, बिकॉज कैपिलरीज का साइज होता है छोटा, ठीक है, कैपिलरीज का साइज होता है ओनली 5 म्यूएम, 5 माइक्रोमीटर, डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज ओनली 5 म्यूएम। तो कैपिलरीज कैन ट्रैवल थ्रू द नैरो स्पेसेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, लेकिन हमको पता है कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामोस सेल्स, स्क्वामोस सेल्स आर फ्लैट सेल्स, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर कभी भी अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर तो सबको पता है, कभी भी अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो देयर इज अ सबसे ज्यादा चांसेस रहता है कि ब्रेन का कोई ब्लड वेसल फटने का, बिकॉज ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स है वो कैपिलरीज होता है मोस्टली, बिकॉज ब्रेन बहुत ही कम्पैक्ट है, ब्रेन के अंदर अगर घुसना है तो आर्टेरी, आर्टेरियोल, वेन्यूल, वेन ये सब नहीं घुस सकता है, वहां पे सिर्फ कैपिलरी ही घुस सकता है, हेंस ये कैपिलरी का चांसेस है कि ये कभी भी फट सकता है। तो ये जो एस्ट्रोसाइट है, ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है, ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके ऊपर आके एक इस तरीके का लेयर का फॉर्मेशन कर जाता है, जिसके वजह से ये ब्लड का कैपिलरी जो है, इसका जो वाल है, वाल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वाल के ऊपर एक और लेयर आके बैठ गया, ठीक है ना। अभी अंदर का ब्लड अगर इस कैपिलरी को बार्स्ट करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ब्लड कैपिलरी का अंदर का लेयर है, उसके ऊपर एस्ट्रोसाइट आके फिर से उसके ऊपर बैठ गया, तो डबल लेयर हो गया। अभी इसको फोड़ने के लिए बहुत प्रेशर बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, नहीं तो एकदम कम प्रेशर में ही ये ब्लड कैपिलरी फट जाता, ठीक है ना। अब ये करने के वजह से ब्लड कैपिलरी को ब्रेन के अंदर मिला है डुअल लेयर का प्रोटेक्शन, एज वेल एज आज अगर इस ब्लड वेसल को सपोज यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन तक बोले कोई न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन डिलीवर करना है, अब ये ब्लड कैपिलरी डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, ये ब्लड कैपिलरी न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन देगा किसको, ये वाला लेयर को, ये ब्लू वाला लेयर को, ये ब्लू वाला लेयर को एस्ट्रोसाइट, और फिर एस्ट्रोसाइट डिलीवर करेगा किसको, न्यूरॉन को। यहाँ पे एस्ट्रोसाइट क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी के ऊपर आके बैठने के वजह से वो एक मिडिल मैन भी बन गया कि नहीं, बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड उसके ऊपर का न्यूरॉन। अभी न्यूरॉन को कुछ चाहिए ब्लड कैपिलरी से लेना है, क्या होगा, ब्लड कैपिलरी एस्ट्रोसाइट को देगा, एस्ट्रोसाइट न्यूरॉन को देगा। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन माने न्यूरॉन के बीच का बैरियर बन के खड़ा है। ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म्स माइलिन शीथ ओवर एक्सॉन इन सीएनएस, मतलब हमारे बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जितना भी माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है, उन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन श्वान सेल नहीं करता है, उन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
ब्रेन से क्रेनियल नर्व निकल के जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकल के बॉडी के पेरीफेरी में जा रहा है। उन नर्व्स में जो माइलिन शीथ होगा उसका फॉर्मेशन श्वान सेल करेगा, ठीक है ना। सपोज ये हमारा ब्रेन और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये है सीएनएस, अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये है बी, ये है एससी। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जितना भी माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है उनका माइलिन शीथ का फॉर्मेशन श्वान सेल नहीं करेगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। हाँ, अब ब्रेन से बोले कुछ ऐसे करके बोले पेरीफेरी में कुछ नर्व्स निकल के जा रहा है, क्रेनियल नर्व, या स्पाइनल कॉर्ड से बोले कुछ पेरीफेरी में निकल के जा रहा है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, इन नर्व्स में अगर कोई माइलिनेटेड न्यूरॉन प्रेजेंट है तब उसका माइलिन शीथ का फॉर्मेशन श्वान सेल करेगा। लेकिन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है हमेशा, याद रखना। माइक्रोग्लियल सेल ओनली एंटाइटी माने ओनली ए टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू विच इज ऑफ मेसोडार्मल ओरिजिन, इसको छोड़ के बाकी सब एक्टोडार्मल ओरिजिन है। ये है इसका एक हटके प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आता है एंट्रेंसेस में, ठीक है। ये एस्ट्रोसाइट मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, ओलिगोडेंड्रोसाइट मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, all the types of neuron made up of ectoderm, only microglial cell is made up of mesoderm. It is smallest in size, इसलिए micro performs secondary function क्या है, performs phagocytosis in CNS। CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई सेल मर जाता है, ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, उन अनवांटेड नॉन सेल्फ सेल को, बैक्टीरिया इज अ नॉन सेल्फ सेल, खुद का तो नहीं, वो अलग सेल, अनवांटेड नॉन सेल्फ सेल, डेड सेल, सेल डेब्रिस, ये सबको सीएनएस से रिमूव करने का काम माइक्रोग्लियल सेल का वाया फेगोसाइटोसिस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस कैसे होता है वो भी मैंने तुम लोगों को समझाया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे आज हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नर्वस टिश्यू, ये सब खत्म होता है। नेक्स्ट एज पर द प्लानर क्या चैप्टर आता है उसके अकॉर्डिंगली वी विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है। मेक नोट्स, ओके, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग डोंट हेसिटेट टू आस्क। Bye bye, take care, stay safe, go Corona, go.